Good morning, students. Welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. In previous lecture, we have seen the topic related to unit number 5. In last two lectures, we have seen topics related in unit number 5, that is hydraulic models. Okay, so today is the last lecture on unit number 5. Okay, in previous lecture, we have studied about the Proud's model law. Now we will study about the Reynolds model law. Only these two laws you have to study. Okay, Euler's law, Weber's law, these are not required. Okay, they are not in your syllabus. You just have to study these two laws, that is Proud's law and the Reynolds model law. Okay, so Proud's law, we have seen Proud's law, the formulas in Proud's law and the numerical also. So today we will see a Reynolds model law. Okay, it is also very easy, and we will see one numerical also in Reynolds model law. Then we will see the distorted model. Okay, then this unit number 5 will be over after the uh, distorted model. Okay, so let's see what is Reynolds model law. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने फ्राउड्स मॉडल लॉ के बारे में पढ़ लिए थे, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं फ्राउड्स मॉडल लॉ के, उसके न्यूमेरिकल किस तरह से पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में क्या होता है, इसके कैसे फॉर्मूले हैं और इसे किस तरह सॉल्व करना है। फ्राउड्स मॉडल लॉ ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है, मोर चांसेस है कि फ्राउड्स मॉडल लॉ ही पूछेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके सिलेबस में है और इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ क्या होता है। सो हियर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, models are designed on the basis of Reynolds model law when the viscous force is more predominant in addition to inertia force। देखिए फ्राउड्स मॉडल लॉ में कौन सी फोर्स प्रिडोमिनेंट थी, ग्रेविटी फोर्स, बट इन केस ऑफ रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ द प्रिडोमिनेंट फोर्स इज विस्कस फोर्स। ये हम पहले भी आपने FM1 में पढ़े होंगे कि जो विस्कस फोर्स है ये हमेशा रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, जब हम विस्कोसिटी पढ़े थे हमने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के बारे में पढ़े थे, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। और जो फ्राउड्स मॉडल होता है वो ओपन चैनल फ्लो में यूज होता है, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे जो जो प्रिडोमिनेंट फोर्स है, ठीक है ना, ये प्रिडोमिनेंट जो फोर्स है वो है हमारी विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स जो है, विस्कोसिटी जो है, इसकी वजह से ये क्रिएट होती है, ठीक है ना, और ये ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, ज़्यादा इसका रोल है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। तो हम विस्कस फोर्स के बारे में रेनॉल्ड मॉडल लॉ में पढ़ते हैं हमेशा। उसके बाद इट स्टेट्स दैट व्हाट द लॉ सेज, इट स्टेट्स दैट द रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये हमने फ्राउड्स मॉडल लॉ में पढ़े थे। इट स्टेट्स दैट द फ्राउड्स नंबर फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर सेम। So similarly here also in Reynolds law model law, the Reynolds number for model and prototype must be equal. This condition is applicable for every law. Okay, the model and prototype number should be equal. Whatever the law is, whether it's Euler's, it's Weber, the number should be equal for model and prototype. Okay, these are the condition for every laws. So Reynolds number also, Reynolds model law, this condition is same. Reynolds number for model and prototype must be equal. This is very important condition. And second is the more predominant force is viscous force. Now where will you use this Reynolds model law? Reynolds number is mostly used in cases of closed conduit. Okay, if you remember, Reynolds law is mostly used in cases of pipe. Closed conduit is nothing but pipe. So it is used in incompressible flow, closed conduit, pipe, submarine, underwater, ठीक है ना, submarines, airplanes, etc. So here we can use Reynolds model law. If in numerical, if it mention something mentioned in numerical like closed conduit or pipe, and nothing is written about the law, then you have to by default select the Reynolds model law and solve the numerical on the basis of Reynolds model law. Similarly, if the question said something about the spillway or dam or anything which is open a channel flow, then you will use the Proud's model law. So from the condition, from the
uses itself, you have to identify which law you are going to use. Similarly, here if something is mentioned about the closed conduit, you will have to use the Reynolds model law. So let's see किस तरह इसके फॉर्मूलेस बने हैं, किस तरह इसके डेरिवेशंस आएंगे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या है लॉ का कि रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल, यानी कि ये जो है रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल मस्ट बी इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप. ये तो हमने प्राउड मॉडल लॉ में भी देखे थे. कंडीशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ ऑल्सो. सो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है. ये फॉर्मूला हमें पता है कि रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है रो इंटू वी इंटू डी. ठीक है ना, मास डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर और लेंथ, जो भी हम बोलना चाहे. ये डायमीटर की जगह इसको लेंथ हाइट भी ले सकते हैं हम. ठीक है ना, डिपेंड करता है हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं. डिवाइडेड बाय म्यू. ठीक है ना, विस्कोसिटी इज इक्वल टू अगेन रो वी डी अपॉन म्यू ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है ना, ये दो कंडीशन आपको पता है. अब यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे मॉडल है हम यहाँ पे रो ऑफ मॉडल, वेलोसिटी ऑफ मॉडल और डायमेंशन ऑफ मॉडल या डायमीटर या लेंथ भी ले सकते हैं इसको हम. ठीक है ना, डी को हम लेंथ भी ले सकते हैं. कोई भी लीनियर डायमेंशन की वैल्यू यहाँ पे लिखना है. डिवाइडेड बाय म्यू एम. सिमिलरली रो पी वी पी डी पी अपॉन म्यू पी. ये सब प्रोटोटाइप का है. अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हमें वेलोसिटी रेशियो अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वेलोसिटी रेशियो. तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे. तो रो एम वी एम डी एम अपॉन रो पी वी पी डी पी हो गया. तो ये क्या हो गया, रो एम अपॉन रो पी क्या हो गया, ये रो आर. ठीक है ना, ये हो गया मास डेंसिटी का रेशियो. सिमिलरली वी एम अपॉन वी पी हो गया वी आर, वेलोसिटी रेशियो. डी एम अपॉन डी पी, यहाँ पे हम डी आर भी ले सकते हैं और यहाँ पे लेंथ रेशियो, स्केल रेशियो हो जाएगा, क्योंकि लीनियर डायमेंशन है. डायमीटर क्या है, एक लीनियर डायमेंशन है ना. सिमिलरली इसीलिए डी एम अपॉन डी पी को हम स्केल रेशियो यानी कि एल आर ले सकते हैं. सिमिलरली म्यू पी अपॉन म्यू एम अपॉन म्यू पी क्या हो जाएगा, म्यू आर, स्केल रेशियो फॉर विस्कोसिटी. म्यू आर मतलब स्केल रेशियो फॉर विस्कोसिटी. अब यहाँ पे देखिए, डी एम अपॉन डी पी लो या एल एम अपॉन एम पी लो, इसका मीनिंग एल आर होता है, स्केल रेशियो. ठीक है, डायमीटर लेंथ ये सब लीनियर डायमेंशन है, स्केल रेशियो हो जाएगा एल आर. ठीक है, तो अगर हमको वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में निकालना है तो वी आर इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन रो आर एल आर. ठीक है ना, इसके डिवीजन में चला जाएगा रो आर और एल आर. सो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में म्यू आर अपॉन रो आर इंटू एल आर. इतना बड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला बनेगा. मैं तो हमने प्राउड में देखे थे कि अंडर रूट एल आर सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें हमने मास डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें आएगी. ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला निकल गया. उसके बाद डिस्चार्ज का फॉर्मूला कैसा निकलेगा, देखो डिस्चार्ज हमको पता है क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू पी. हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए अभी फिलहाल में डिस्चार्ज रेशियो की. तो क्यू एम क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ मॉडल इंटू वेलोसिटी ऑफ मॉडल. प्रोटोटाइप के लिए एरिया ऑफ प्रोटोटाइप इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप. सिमिलरली जैसे आपको पता है ए एम अपॉन ए पी क्या होता है, एरिया रेशियो है ना, ये हम देख चुके हैं. ए एम अपॉन ए पी होता है एरिया रेशियो, ए आर स्क्वायर. सिमिलरली वी एम अपॉन वी पी क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो यानी कि वी आर. हम यहाँ पे ध्यान से देखो, ए आर हम आपको पता है, ए आर का मतलब क्या होता था, एल एम स्क्वायर अपॉन एल पी स्क्वायर. ठीक है ना, एल आर का मतलब होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर स्क्वायर है स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एल आर स्क्वायर आ जाएगा. तो एरिया रेशियो क्या हो जाएगा, एल आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम एल आर स्क्वायर ले सकते हैं. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एरिया रेशियो में ए आर स्क्वायर को हम एल आर स्क्वायर ले सकते हैं. सिमिलरली वी आर को जैसा क्या वैसा रहने देंगे. सिमिलरली फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी आर की ये जो वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो वी आर की जगह म्यू आर अपॉन रो आर इंटू एल आर लिख देंगे. फिर क्या करेंगे, एक एल आर यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जा रहा है. ठीक है ना, ये वैल्यू देखिए, ये एक एल आर और ये एक एल आर कैंसिल हो जाएगा. क्या बच जाएगा, एल आर इंटू म्यू आर अपॉन रो आर. ये फाइनली हमारा डिस्चार्ज का इक्वेशन बनेगा. ठीक है, इस तरीके से डिस्चार्ज का इक्वेशन. प्राउड मॉडल में मैं इसलिए बोला था कि ज़्यादा चांसेस, उसके फॉर्मूले शॉर्ट है, इसके फॉर्मूले थोड़े से लेंदी है, तो थोड़ा सा इसके चांसेस कम है. बट फिर भी इसे आपको रखना है, तैयार रहना है आपको कि ये भी पूछ सकता है. इसके बाद फोर्स रेशो देख लेते हैं हम रेनॉल्ड मॉडल में. फोर्स रेशो का आपको पता है एफ एम अपॉन एफ पी फॉर्मूला है, और हमने ये भी देखे थे कि रो ए बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है फोर्स का. कैसा निकाला था हमने प्राउड नंबर लॉ में देख लिए थे. तो रो ए बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है फोर्स का. मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों के लिए अलग अलग, ऊपर मॉडल नीचे प्रोटोटाइप.
तो इसको हम रो एम ए एम वी एम स्क्वायर रो पी ए पी वी पी स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। रो एम अपॉन रो पी की जगह हम रो आर लिख सकते हैं। ए एम अपॉन ए पी, देखिए एरिया रेशो आया तो यहाँ पे हम एल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। वी एम स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर, इसकी जगह हम वी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वी आर की जगह जो हमारा पुराना फॉर्मूला था जो आया अभी, देखिए वेलोसिटी का म्यू आर अपॉन रो आर इंटू एल आर, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे कैंसिल, ये एल आर एक कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म हमारा बच रहा है रो आर एक कैंसिल हो जाएगा। वो क्या बच रहा है, म्यू आर स्क्वायर अपॉन रो आर, ठीक है ना, म्यू आर स्क्वायर अपॉन सिर्फ रो आर बच रहा है। एल आर ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक रो आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया फिर, ठीक है, म्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाय रो आर। तो फोर्स रेशो भी समझ गया इस तरीके से फोर्स रेशो का इक्वेशन। उसके बाद पावर रेशो इसमें कैसे निकालते हैं, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में पावर रेशो, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पी आर पावर रेशो से निकालेंगे, पी एम अपॉन पी वी मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप। पावर का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स ऑफ मॉडल वेलोसिटी ऑफ मॉडल, फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है ना इक्वेशन। एफ एम अपॉन एफ पी मतलब फोर्स रेशो, वी एम अपॉन वी पी मतलब वेलोसिटी रेशो। फोर्स रेशो अभी जस्ट आपने निकाले ऊपर, फोर्स रेशो म्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाय रो आर, और वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला ये जो सबसे पहले हमने निकाले म्यू आर अपॉन रो आर इंटू एल आर। तो ये दो फॉर्मूले आ रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, म्यू आर क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और नीचे रो आर स्क्वायर इंटू एल आर। तो दिस इज अवर पावर रेशो। सिमिलरली लास्ट इसमें जो है टाइम रेशो, टाइम रेशो इसमें रेनॉल्ड नंबर में कैसे निकलेगा, देखो टाइम रेशो का फॉर्मूला आपको पता है टी एम अपॉन टी पी होता है, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप। याद करिए टाइम का फॉर्मूला लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। हम देखिए आप अभी अगर आप डायरेक्ट इसको लेक्चर को देख रहे हो तो आपको नहीं समझेगा, आप फ्राउड्स मॉडल लॉ देखिए, ये सब हम पहले ही निकाल चुके हैं। लेंथ अपॉन प्रोटोटाइप कैसा आया टाइम में, ये सब हम फ्राउड्स में समझ चुके हैं। हम इसका सिर्फ एक एक्सटेंशन पार्ट है ये रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। फ्राउड्स मॉडल लॉ बेसिक है, उसमें हर एक फॉर्मूला हमने निकाल के सॉल्व किए। तो हमने देखे थे कि लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला होता है। उसके बाद लेंथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉडल, लेंथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। इसको इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, एल एम अपॉन एल पी इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी एम, ठीक है। उसके बाद देखो एल एम अपॉन एल पी मतलब एल आर होता है, ये हमको पता है, लेंथ स्केल रेशो हो जाता है एल आर। अब यहाँ पे वी पी ऊपर है, वी एम नीचे है, तो हम क्या करेंगे, हमको मॉडल ऊपर चाहिए, प्रोटोटाइप नीचे, क्योंकि यहाँ पे मॉडल ऊपर है प्रोटोटाइप नीचे। तो हम क्या करेंगे, वन अपॉन वी एम अपॉन वी पी। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया इक्वेशन, वी एम अपॉन वी पी मतलब वेलोसिटी रेशो यानी कि वी आर। तो एल आर इंटू वी आर की जगह हम वी आर का जो वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला सबसे पहला है म्यू आर अपॉन रो आर एल आर, ये रख देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह बन जाएगा, ये एल आर एक ऊपर आ जाएगा, सो एल आर स्क्वायर इंटू रो आर डिवाइड बाई म्यू आर। तो दिस इज द टाइम रेशो, ठीक है। तो इस तरीके से रेनॉल्ड्स लॉ के फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले थोड़े से लेंदी है, बस आपको थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक शॉर्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें। देखिए न्यूमेरिकल ऑन रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं शॉर्ट में। अ पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90 एंड विस्कोसिटी 3 इंटू 10⁻⁻² पॉइस, यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, पॉइस है, at the rate of 3000 liters per second. Okay. Tests were conducted on a 15 centimeter pipe, 15 centimeter dia pipe using water, okay, at 20 degree. Find the viscosity and rate of flow in the model. Viscosity of water at 20 degrees 0.01 points. इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और इसमें से सबसे पहले डेटा निकालना पड़ेगा, क्या दिया है क्या पूछा है। सबसे पहले देखो पहली लाइन हम पढ़िए आप, अ पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, यानी कि जो एक्चुअल पाइप का डायमीटर है वो कितना है 1.5 मीटर, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90, यानी कि जो प्रोटोटाइप है वो बड़ा जो पाइप है उसका डायमीटर है 1.5 और उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो है ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.90 और उसकी ही विस्कोसिटी, उसी पाइप की बड़े वाले जो पाइप है जो प्रोटोटाइप है उसी की विस्कोसिटी है 3 इंटू 10⁻⁻² पॉइंट्स।
एट द रेट ऑफ 3000 लीटर्स पर सेकेंड, यानी कि प्रोटोटाइप पहली जो 2 लाइन है ये टोटल प्रोटोटाइप का के बारे में है, ठीक है ना। फर्स्ट 2 लाइन जो है इसमें ये पूरी प्रोटोटाइप के बारे में, 3000 लीटर्स उसमें डिस्चार्ज होगा, इतना समझ गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, टेस्ट कंडक्ट किया गया है 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर डाया की पाइप पे। अब ये डायमीटर में फर्क देखिए, 15 सेंटीमीटर का डायमीटर मतलब ये एक मॉडल है, ठीक है ना। टेस्ट जिस पे कंडक्ट किया गया वो तो एक मॉडल हो गया, तो टेस्ट वो कंडक्टेड ऑन 15 सेंटीमीटर डाया पाइप, ये हो गया मॉडल का डायमीटर यूजिंग वाटर। अब यहाँ पे देखो, वहां पे तो ऑयल है फ्लो में, लेकिन यहाँ पे वाटर, हम यहाँ पे मॉडल में क्या टेस्ट कर रहे हैं, ऑयल की जगह वाटर का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि यहाँ पे ये वाटर यूज कर रहे हैं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑयल यूज हुआ, मेन जगह ऑयल यूज होगा, लेकिन जो मॉडल टर्म टेस्ट कर रहे हैं उसमें हम वाटर का यूज कर रहे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं, न्यूमेरिकल में आपको बताने के लिए जनरली जो लिक्विड है वो इसी लिक्विड को रखा जाता है। फाइंड द विस्कोसिटी एंड द रेट ऑफ फ्लो इन द मॉडल। क्या पूछा, विस्कोसिटी कितनी है मॉडल में और रेट ऑफ फ्लो मॉडल में, यानी कि मॉडल का डेटा निकालना है, प्रोटोटाइप का डेटा पूरा अवेलेबल है। उसी के साथ साथ कुछ लिखा है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी यहाँ पे मेंशन है 0.01 पॉइंट, ठीक है। अब देखो डेटा कितना सारा हमारे पास अवेलेबल है। मैंने जैसे बताया मॉडल की सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये सॉरी प्रोटोटाइप जो है ना, पहली जो 2 लाइनें प्रोटोटाइप की है उसमें सारी की सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप 1.5 मीटर है, देखो पाइप का। स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोटोटाइप की कितनी है 0.90। विस्कोसिटी कितनी है देखिए यहाँ पे 3 × 10⁻⁻² पॉइंट, ये भी लिख दिया हमने। सिमिलरली जो रो पी है 3 × 10⁻⁻², ये तो आपको विस्कोसिटी है, लेकिन अगर आपको मास डेंसिटी निकालना है रो पी तो वो कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रो पी आ जाता है। ये फार्मूला आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास डेंसिटी रो पी निकल जाएगा, जो कि आ जाएगा फिर 900 kg/मीटर। सिमिलरली उसने क्या बोला है कि मॉडल प्रोटोटाइप में डिस्चार्ज कितना है 3000 लीटर्स पर सेकेंड। तो क्यूपी यानी कि ये डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप हो गया 3000 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको यूनिट हमने चेंज की, ये लीटर्स पर सेकेंड है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो प्रोटोटाइप का डेटा हो गया। तो मॉडल का डेटा भी अवेलेबल है, इसमें कुछ डेटा अवेलेबल है और कुछ निकालना है। जैसे कि मॉडल का डायमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर डायमीटर ऑफ मॉडल। जीएम ये आपको अंदाजा इसमें लगा सकते हैं, कैसा, ग्रेविटी कितनी होगी इसकी, अगर कोई कौन सा लिक्विड फ्लो कर रहा है वाटर, तो मॉडल में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी है 1 होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आपको याद रखना है कि जीएम इज इक्वल टू 1। सिमिलरली म्यू एम यानी कि जो मॉडल की विस्कोसिटी है, जो फ्लो लिक्विड की विस्कोसिटी है मॉडल में, वो कितना लिखा है यहाँ पे 0.01 पॉइंट, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए 0.01 पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली रो एम मॉडल की मास डेंसिटी, मॉडल में जो भी लिक्विड फ्लो रहा है उसकी मास डेंसिटी, तो लिक्विड कौन सा है वाटर, वाटर की मास डेंसिटी है 1000 kg/मीटर। कुछ डेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ डेटा यहाँ पे है नहीं लेकिन वो स्टैंडर्ड डेटा है, जैसे कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास डेंसिटी। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, मास डेंसिटी होती है 1000। पूछा क्या था, फाइंड द विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है डिस्चार्ज, तो विस्कोसिटी और डिस्चार्ज निकालना है मॉडल में, तो वीएम और क्यूएम आपको निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपल है, सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले क्या पूछा, वेलोसिटी इन मॉडल, तो वेलोसिटी इन मॉडल, उससे भी पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि रेनॉल्ड मॉडल लॉ यूज़ करो। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा लगाना है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉडल लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पाइप मेंशन है, पाइप क्या है, क्लोज कंड्यूट है, पाइप क्या है, क्लोज कंड्यूट है। और हमने अभी देखे रेनॉल्ड मॉडल लॉ कब यूज़ करते हैं, जब पाइप हो, क्लोज कंड्यूट हो, एयरप्लेन, सबमरीन, इसमें हम रेनॉल्ड मॉडल लॉ यूज़ करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वी विल यूज़ रेनॉल्ड मॉडल लॉ। तो यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे लिखा नहीं है कि द लॉ विल बी रेनॉल्ड मॉडल लॉ विल बी यूज फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी रेनॉल्ड मॉडल लॉ अब जो हमने पढ़े, सबसे पहले क्या पूछा है, वेलोसिटी इन मॉडल। सो वेलोसिटी इन मॉडल
वेलोसिटी रेशो क्या निकाले अभी हमने, ये देखो यहाँ पे निकाले, वेलोसिटी रेशो निकाले हमने म्यू आर अपॉन रो आर इंटू एल आर, म्यू आर अपॉन रो आर इंटू एल आर, ये फॉर्मूला है मेन हमारा वेलोसिटी रेशो का। ठीक है, म्यू आर का मतलब म्यू ऑफ मॉडल डिवाइड बाय म्यू ऑफ प्रोटोटाइप, म्यू आर मतलब विस्कोसिटी रेशो। तो विस्कोसिटी रेशो क्या है, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, विस्कोसिटी ऑफ मॉडल अपॉन विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, म्यू एम अपॉन म्यू पी, इतना पता है। सिमिलरली रो एम अपॉन रो पी, एल आर मतलब डी एम अपॉन डी पी। यहाँ पे देखो, तो अगर पाइप की लेंथ रहती तो हम उसको एल एम लेते और इसको एल पी और एल एम लेते, तो वो भी हमारा एल आर होता था। सिमिलरली डायमीटर डी पी अपॉन डी एम और डी पी की वैल्यू दी है, तो डी एम अपॉन डी पी भी हमारा एल आर ही होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लीनियर डायमेंशन है। तो एल आर का मतलब लीनियर डायमेंशन का रेशो है, वो डायमीटर हो सकता है, लेंथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ रेशो में डी एम अपॉन डी पी। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यूज को पुट करना है। म्यू एम कितना है, देखो म्यू एम कितना है हमारे पास 0.01 पॉइंट, तो 0.01 लीजिए। म्यू पी कितना है 3 इंटू 10⁻², उसकी वैल्यू लिख दी। सिमिलरली रो एम कितना है हमारे पास 1000, रो पी कितना है हमारे पास 900, 1000 अपॉन 900 मल्टीप्लीकेशन में डी एम अपॉन डी पी, डायमीटर ऑफ मॉडल, डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 0.15, प्रोटोटाइप का 1 पॉइंट। सिमिलरली पूरा डेटा आपके पास आ गया। वैल्यू कितनी आ रही है फिर वी आर की, सॉल्व करने के बाद वी आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। ठीक है, वी आर की वैल्यू आ रही है 3। सो वी आर इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी पी, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मॉडल अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉडल की। आपके पास ये चीज़ मिसिंग है वी एम, ठीक है ना, लेकिन आपके पास पता चल गया कि इनका रेशो कितना है 3। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि वी एम इज इक्वल टू 3 वी पी, है ना। ये इक्वेशन हम यहाँ से बना लेते हैं, ये वी एम किसके बराबर होता है 3 वी पी के। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं अभी। अब आपको क्या चाहिए, वी एम की वैल्यू चाहिए, एक्चुअल आंसर कितना है वी एम का। उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। आपको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आपके पास प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज दिया है क्यू पी 3000 10 इंटू 10⁻⁻। तो हम क्या करेंगे, क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रोटोटाइप मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, है ना। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ प्रोटोटाइप इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। अगर आपके पास यहाँ पर वीपी की वैल्यू पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप नहीं है कहीं पर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप का नहीं लिखा है आज के बाद। तो अगर हम वीपी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आराम से हम वीएम निकाल सकते हैं, बस उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये वीपी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वीएम निकल जाएगा। तो वीपी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्यूपी अपॉन एपी, इसके हिसाब से क्यूपी यानी कि डिस्चार्ज प्रोटोटाइप में कितना दिया है 3000 इंटू 10⁻⁻3। तो 3000 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का एरिया डीपी कितना है, डायमीटर कितना है 1.5। सो इसका डायमीटर 1.5 है, तो पाई बाय 4 इंटू 1.5 स्क्वायर एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। तो उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप कितनी आ रही है 1.69। जब ये 1.69 आई तो वी एम कितना आ जाएगा 3 इंटू वी पी, यानी कि 3 इंटू 1.69। सो वी एम इज इक्वल टू 5.09। ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मॉडल। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला इसका आंसर निकाल लिया वी एम का। अब निकालना है क्यू एम, डिस्चार्ज इन मॉडल। देखिए डिस्चार्ज इन मॉडल, तो ये काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सेम तो फार्मूला डिस्चार्ज का ए एम अपॉन बी एम, एरिया ऑफ मॉडल इंटू वेलोसिटी इन मॉडल। तो एरिया ऑफ मॉडल, देखिए मॉडल का डायमीटर कितना है 0.15, तो आसानी से ये निकल जाएगा। पाई बाय 4 इंटू 0.15 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ मॉडल अभी निकला 5.09, तो आसानी से क्यू एम निकल गया 0.089। तो इस तरीके से मॉडल का डायमीटर डिस्चार्ज, तो दोनों वैल्यूज के हमने आंसर निकाल लिए वी एम और क्यू एम। ठीक है, इस तरीके से रेनॉल्ड मॉडल लॉ का ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट चीज जो हमको देखना है आज, वो देखना है डिस्टॉर्टेड मॉडल का न्यूमेरिकल, और इसका किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टॉर्टेड मॉडल। ठीक है, देखिए जब फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखे थे कि दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है अनडिस्टॉर्टेड, एक होता है डिस्टॉर्टेड। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस पूरा बता चुका हूँ उसका। तो हमने देखे थे कि अनडिस्टॉर्टेड मॉडल में जो लीनियर डायमेंशन होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डिस्टॉर्टेड मॉडल में लीनियर डायमेंशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये ब्रैकेट में देखिए,
यहाँ पे लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज नॉट इक्वल टू हाइट ऑफ मॉडल अपॉन हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, यानी कि LR का जो रेशो हो रहा है हॉरिजॉन्टल के लिए वो वर्टिकल के लिए बराबर नहीं है, यानी कि वर्टिकल LR और LV बराबर नहीं है, ठीक है ना। LR फॉर हॉरिजॉन्टल और LR फॉर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू वर्टिकल डायमेंशन, जो रेशोज आ रहे हैं दोनों के वो सेम नहीं है, इसका मतलब स्केल रेशो अलग अलग है डिस्टॉर्टेड मॉडल में। तो इसमें डिस्टॉर्टेड मॉडल का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कि रिवर, जो कि बहुत अनइवन फ्लो होती है, उसका हम हाइट लेंथ वगैरह का अंदाज़ा हम एग्जैक्ट उसका मॉडल बनाना मुश्किल है, तो उसके लिए आपको हाइट और लेंथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को अलग अलग लेना पड़ता है। ये हमने डिफरेंस पढ़ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूले कैसे बनेंगे। स्केल रेशियो फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, अब इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डायमेंशन हो गया ये हॉरिजॉन्टल LR हो गया हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, और ये वर्टिकल डायमेंशन। तो इसका अगर आप मॉडल बनाओगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अलग और वर्टिकल डायमेंशन अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है LR हॉरिजॉन्टल जो आएगा हॉरिजॉन्टल, तो मॉडल LM अपॉन LP बराबर है, और BM अपॉन BP ये दोनों क्या है वेट लेंथ ये सब हॉरिजॉन्टल है। तो LM अपॉन LP और BM अपॉन BP होता है LR हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल डायमेंशन, यानी कि हाइट ऑफ मॉडल डिवाइड बाय हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं हम LRB। तो इसको बोलते हैं LR हॉरिजॉन्टल यानी कि H, इसको बोलते हैं LR वर्टिकल यानी कि B, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो रेशो है ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ आर नॉट डिफरेंट, ओके दे आर नॉट सेम। सो इस तरीके से दोनों अलग अलग लेंगे। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है B इंटू एच, है ना, विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो AR का एरिया का रेशियो क्या होता है AM अपॉन AP। तो जब एरिया ऑफ मॉडल निकालेंगे तो BM अपॉन HM हो जाएगा, B इंटू एच, BM अपॉन HM। सिमिलरली AP निकालोगे तो BP इंटू HP। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अब LR स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि BM और HM दोनों रेशो अलग अलग होने की वजह से अब क्या होगा BM अपॉन BP तो हॉरिजॉन्टल है, सो LR H हो जाएगा। HM अपॉन HP का वर्टिकल है इंटू LRV, सो एरिया क्या बनेगा फिर LR हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय LR वर्टिकल, स्केल रेशियो फॉर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल। तो इस तरीके से एरिया रेशियो निकलेगा। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो कैसा निकलेगा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh, आपको पता है ये बेसिक फार्मूला। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है VM अपॉन VP। तो यहाँ पे V की जगह हम VM की जगह हम क्या लेंगे √2gh ऑफ मॉडल √2gh ऑफ प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे देखो 2g कॉमन है, अंडर रूट हम क्या करेंगे ये कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या √HM अपॉन HP। तो H यानी कि हाइट हॉरिजॉन्टल वो सॉरी हाइट वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल के लिए हम क्या लेंगे हमेशा LRV, तो क्या बच गया √LRV। तो VR का क्या बनता है इक्वेशन √LR वर्टिकल, तो ये फॉर्मूला VR का बनता है। अगर आपको डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालना है स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज, तो QR इज इक्वल टू QM अपॉन QP बेसिक फॉर्मूला। मॉडल डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी, तो QM जो है उसके लिए AM इंटू VM, QP के लिए AP इंटू V, सॉरी AM अपॉन AP की जगह हम क्या लेंगे AR एरिया रेशियो, VM अपॉन VP की जगह लेंगे VR, ठीक है। तो AR की जगह हमने अभी AR का फॉर्मूला देखे क्या आया था LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR वर्टिकल, तो LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR वर्टिकल, और VR की जगह आया √LRV। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसका 1 है पावर, सो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। सो LRH जैसा का वैसा रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे इनकी पावर, तो आंसर आ जाएगा LR वर्टिकल का 3/2। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया डिस्चार्ज रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद स्केल रेशियो फॉर टाइम, इसका मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, टाइम का आएगा LRH डिवाइड बाय √LRV, ठीक है। ये फार्मूला टाइम का बनेगा। तो इस तरीके से ये कुछ फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले याद रखना है इसमें, और अगर डिस्टॉर्टेड मॉडल का क्वेश्चन आएगा तो आपको इन फार्मूले का हेल्प लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, देखिए न्यूमेरिकल एक लास्ट, फिर इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 5 खत्म हो जाएगा। यूनिट नंबर 5 सबसे छोटा यूनिट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और मार्क्स भी इसमें अच्छे मिल जाएंगे आपको। देखिए अ रिवर मॉडल कंस्ट्रक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल स्केल ऑफ 1:1000
हॉरिजॉन्टल स्केल कितनी है 1:1000 एंड वर्टिकल स्केल 1:75। यहाँ पे एल आर हॉरिजॉन्टल कितना है 1:1000 और एल आर वर्टिकल है 1:75। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इन द प्रोटोटाइप फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाटर, यानी कि प्रोटोटाइप में कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए, यानी कि कुछ डेटा है। प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज है 2500 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और बेड स्लोप, क्योंकि रिवर है ओपन चैनल फ्लो है ना, रिवर मॉडल है कुछ इस तरीके से, वो ओपन चैनल है तो उसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा ना, तभी तो वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, बेड स्लोप हम पढ़ चुके हैं ओपन चैनल फ्लो में, तो इसका जो बेड स्लोप होगा, यानी कि रिवर हो गई हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका जो बेड स्लोप होगा वो कितना है 1:1000। ठीक है, 1:1000 बेड स्लोप गिवन है। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन मॉडल, यानी कि आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी और स्लोप ये तीनों आप मॉडल की भी निकालना है। ठीक है, मॉडल की भी आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी वगैरह ये सब निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक स्लोप है, ये रिवर का, सपोज रिवर इस पे से इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में जो है वो रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, फ्लो हो रही है, तो ये लेंथ है, ये हाइट है। ठीक है ना, आपको अगर इसका स्लोप निकालना है बेड स्लोप, तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा h/l हाइट बाय लेंथ होती है ना, तो जो आई है स्लोप हो गया इसका कितना होगा h/l, ये याद रखना है, आगे काम आएगा। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आगे और। तो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन मॉडल, सबसे पहले डेटा देखो, आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पे प्रोटोटाइप की गिवन है, लेकिन उससे भी पहले क्या गिवन है देखो, हॉरिजॉन्टल स्केल 1:1000 दिया है, वर्टिकल स्केल LRV 1:75, उसके बाद प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज 2500, प्रोटोटाइप का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, बेड स्लोप प्रोटोटाइप का 1:1000। पूछा गया है फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन मॉडल, यानी कि QM, डिस्चार्ज इन मॉडल, वेलोसिटी इन मॉडल और स्लोप इन मॉडल, ये तीन चीजें आपको निकालनी है। एक एक करके आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम QM। QM निकालने के लिए आपको डिस्चार्ज रेशो का यूज करना पड़ेगा, तो डिस्चार्ज रेशो QR का फॉर्मूला क्या होता है, QM/QP। ठीक है, अब यहाँ पे इधर आइए, बेसिक, जो आपने डिस्चार्ज का फॉर्मूला बेसिक निकाले वो क्या आया था, LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR वर्टिकल 3/2 रेस्ट टू पावर 3/2, तो LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR वर्टिकल रेस्ट टू पावर 3/2। इस इक्वेशन से हम QR की वैल्यू निकालें। देखिए याद रखिए, जब तक QR नहीं निकलेगा आप इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास QP तो दिया है, आपको निकालना QM है, तो उसके पे लेकिन QR मिसिंग है, तो QR का बेसिक फॉर्मूला अभी हमने निकाले थे LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR वर्टिकल 3/2, तो LR 1/1000 और LRV कितना आ गया 1/75, तो QR का कितना आ रहा है 0.5 टाइम्स 0 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6, तो QR आ गया। QR का फॉर्मूला क्या है, QM/QP। QM आपको निकालना है, QP कितना है 2500, देखिए डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप 2500 लिख दिए। QR जो है वो अभी निकाले हमने 2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो यहाँ पे QM आसानी से निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो QM का आ गया 0.038 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पहला आंसर आपने निकाल लिए डिस्चार्ज इन मॉडल। सिमिलरली वेलोसिटी इन मॉडल निकालना है, यानी कि VR रेशो चाहिए आपको, तो VR की वैल्यू चाहिए। VR का फॉर्मूला है VM/BP। आपको क्या पूछा है, VM पूछा है, लेकिन वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप आपके पास है क्या, बिल्कुल है, वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप 2 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले VR देखो, वेलोसिटी रेशो क्या आ रहा था, √LRV। देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशो हमने निकाले थे, √LRV आया। तो अगर आपके पास LRV है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। LR वर्टिकल कितना है हमारे पास स्केल 1:75, सिंपल, √1:75 VR की जगह रख दिए। VM/VP आपको क्या चाहिए, VM, VP कितना है 2, वेलोसिटी प्रोटोटाइप गिवन है 2, तो रेशियो का यूज करेंगे फिर। VM कैसा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.23, वेलोसिटी मॉडल निकल गया आसानी से, वेलोसिटी मॉडल। थर्ड थिंग क्या है यहाँ पे, स्लोप, बेड स्लोप इन मॉडल, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, देखो यहाँ पे स्लोप इन मॉडल कैसा निकलेगा, स्लोप का रेशियो भी क्या होगा,
मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, सो एस एम अपॉन एस एल। अब स्लोप का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, एच बाय एल क्यों लिया है यहाँ पे, हाइट बाय लेंथ क्यों लिया है, ये देखो मैंने बताया ये स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन सॉरी आपका ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई इंटू एच बाय एल, ये फॉर्मूला आपको पता है, हाइट बाय लेंथ, है ना। ये क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमेशा हम इसको 10 के फॉर्म में लेते हैं ना, एच अपोजिट अपॉन ये आपका जो बेस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे, ठीक है। एच बाय एल, एच बाय एल इसलिए हम लेते हैं हाइट बाय लेंथ, 10 के फॉर्म में लेंगे, 10 आई। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, एच बाय एल फॉर मॉडल, एच बाय एल फॉर प्रोटोटाइप, एच बाय एल फॉर मॉडल, एच बाय एल और एच बाय एल फॉर प्रोटोटाइप। तो इसको हम अगर पूरे तरह अच्छे से लिखेंगे तो एच एम अपॉन एल एम हो गया, मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर हो जाएगा एल पी और एल एच पी नीचे हो जाएगा। सिमिलरली एच एम अपॉन एच पी, लेकिन एल पी अपॉन एल एम हो गया यहाँ पे, ये एच एम अपॉन एच पी यानी कि हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हाइट है, मतलब यहाँ पे एल आर वी आएगा वर्टिकल, सो एल आर वी आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे एल पी अपॉन एल एम, ये तो एल आर आएगा, लेकिन एल एम ऊपर होना चाहिए था, एल पी नीचे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय एल आर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसको और अच्छे से आप लिख सकते हैं, एल आर वर्टिकल डिवाइड बाय एल आर हॉरिजॉन्टल। तो बेड स्लोप में क्या होगा, एल आर वर्टिकल डिवाइड बाय एल आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आगे देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्टिकल कितना है 1/75, हॉरिजॉन्टल कितना है 1/1000, स्केल दिया है क्वेश्चन में, दी भी है। आपको क्या चाहिए, पूछा क्या है, एस एम कितना है, लेकिन स्लोप इन मॉडल, स्लोप इन प्रोटोटाइप तो हमारे पास है। तो एस आर की जगह हम क्या लिख देंगे, रेशियो एस एम अपॉन एच पी, और ये कितना आया एस आर का वैल्यू 1/75 डिवाइड टू 1/1000। आपके पास एस एम की वैल्यू आपको पूछा है, एस पी आपके पास अवेलेबल है, देखो यहाँ पे बेड स्लोप प्रोटोटाइप में है 1/1000। तो क्या करेंगे हम, एस पी को यहाँ पे भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो एस एम इज इक्वल टू 1/75 इंटू 1 डिवाइड बाई 1/1000, और एस पी भी 1/1000 है, तो मल्टीप्लीकेशन में इधर चला जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/75। सो मॉडल का स्लोप कितना आ गया 1/75। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल जो था डिस्टॉर्टेड मॉडल के ऊपर। इस पे आज के लेक्चर के बाद फिर हमारा यूनिट नंबर 5 खत्म होता है। कुछ भी आपको डाउट लग रहा है इसको पढ़िए अच्छे से, कुछ भी डाउट लग रहा है नोट्स आर के बंसल की बुक भी रेफर करिए, और मैं नोट्स भी दूंगा, दोनों को पढ़िए अच्छे से। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।